Now today we will be discuss about exercise 3x 4.3 NCERT class 10th mathematics, and in this exercise we discussed about by the quadratic equation solved by the method of completing a square method. Completing a square method, that means first of all you can do a square and after again solve. Okay, one example also discussed in introduction classes of this chapter. Okay, so now I will come to the point. Question number first: find the roots of following quadratic equations. Okay, आपको रूट्स बताना है, ठीक है. रूट्स दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इफ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट हो यानी संभव हो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है ना. रूट्स बताना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Listen carefully. Roots exist in the case of d equal 0, otherwise d greater than 0. Okay, d equal 0, otherwise d greater than 0. That is roots exist. But if d is smaller than 0, that means negative. D here smaller than 0, that means 0 larger and d स्मॉलर है ना. देखिएगा इधर मुंह जो है जीरो तरफ है, यानी जीरो बड़ा और डी छोटा है. जीरो से छोटा का नेगेटिव होगा, दैट इज रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना. तो ऑल्सो डिस्कस दिस पॉइंट्स. So roots exist in the case of d equal 0 and d greater than 0. Roots do not exist in the case of d smaller than 0. Okay. Now question number first. 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. Okay. The completing a square method, that means first of all convert in the form of a square. Okay. I want to the value of x. Find the roots, that means value of x. The value which is calculated taken one side and remaining are in other side. तो x in this side and constant term of the. जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है आपको, तो वेरिएबल वाले को एक तरफ और कांस्टेंट वाले को एक तरफ. ओके, वेरिएबल को एक तरफ कर दोगे और कांस्टेंट को एक तरफ, बाय द सॉल्यूशन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, listen carefully. Completing a square in this quadratic equation, convert in the form of this, otherwise in the form of this. Okay, for checking a square plus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square. Okay, completing the square है ना, convert in the form of a plus b whole square, otherwise a minus b. So listen, also discuss power 2 a square, otherwise b square, and power 1 that is 2ab, है ना. इसका मतलब अगर हाफ पावर रहेगा, जैसे लिसन half power 4 power and this is 2 power, that is half power, that is sure and sure it is in the form of a plus b whole square. Okay, तो जब भी हाफ पावर रहेगा, that means understand 2ab. Okay, listen me again. X to the power 100 plus 2x to the power 30 by to the power 30 plus y to the power 100. The half power, that is this is 2ab. Half power, this is 2ab. 4 here 2 power, that is half power. 100 here 50, yani half power. Similarly 2 power here power nothing then 1, power nothing then 1, that is half power वाला आपको 2ab होगा. Also discuss in introduction classes. Okay, understand? Half power, that is 2ab. 2 power, then here in 2ab 1 power, है ना. 4 पावर इन 2ab 2 पावर, 100 पावर तो इसका हाफ 50 पावर इन 2ab. ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. Now here
So here 2 power, that means a square. This is sure and sure a square. And here 1 power, that is sure and sure 2ab. Okay? 2ab में आपने क्या देखा कि जब भी 2ab में रहेगा तो हाफ पावर, एंड 2 पावर वाला आपको a स्क्वायर अदरवाइज b स्क्वायर है ना. 2 पावर दैट इज a स्क्वायर अदरवाइज b स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? So convert in the form of square. So also write in the form of root 2 square problem. Root 2 square, that means root 2 write 2 times. Write in one root, no problem. That is one root, 1 2 is taken out from the square root. Okay. Also discuss. So I want to square only this. Both and both complete. Both and both together square. हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमने बताया आपको कि हाफ पावर वाला 2ab होता है ना. स्क्वायर वाला रहेगा तो या तो a स्क्वायर होगा ये, या तो b स्क्वायर होगा, है ना. स्क्वायर वाला या तो a स्क्वायर या तो b स्क्वायर. हाफ पावर वाला 2ab, स्क्वायर वाला ये है तो a स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा हाफ पावर. इसका हाफ है यानी 1 पावर, तो ये बनेगा 2ab. चलिए स्क्वायर also 2 is also only x square equal to 2 also convert in the form of a square. X square also. Okay, minus 7 x equal to minus 3. Also write together both and both and a square, no problem. Also write separate here a square. Here a square separate, but here combine a square, no problem. Okay, the a is known. A is equal to root 2x. A is equal to root 2x. Okay, now this is 2ab. 2 एक जगह root 2x. Okay, एक जगह minus 2, एक जगह root 2x. This okay is equal to minus 3. है ना. Listen carefully. I want to here minus 7x. Here what is minus? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको डिटेल में इसको करने का कोशिश करता हूँ. सेपरेट स्क्वायर, राइट कंबाइन स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. माइनस स्क्वायर वाला क्या होता है? अल्केल का स्क्वायर है, देखिए एक ही स्क्वायर कर दिए, दैट मीन्स रूट 2 स्क्वायर ऑल्सो एक्स स्क्वायर ऑल्सो, यानी रूट 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया. Any problem? So write combine and a square, no problem. Okay? एक की जगह हो गया रूट 2x और 2 एक की जगह कितना 2x. बट लिसन केयरफुली, यहाँ देख रहे हैं 7 है, यहाँ पर 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर 7 लाना है तो 7 से श्योर एंड श्योर इंटू एक्स्ट्रा नहीं हटाने के लिए क्या करेंगे और दैट रिमूविंग 2 डिवाइडेड root 2 cancel, 2 cancel, remaining minus 7 x. आ गया minus 7x. Okay, re-again. है ना. बस यही इसमें समझना रहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला में. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दिस इज ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडेबल पॉइंट. ओके, दिस अंडरस्टैंड, देयर नो प्रॉब्लम. re-again here minus 2 एक जगह minus 2 एक जगह root 2x. अब ये होता है 2ab. तो listen here minus 7x, here minus 7x. तो minus 7 I want don't multiply 7. वो 7 चाहिए तो 7 से तो इंटू करना पड़ेगा तभी ना. x तो ठीक है अवेलेबल, x अवेलेबल है, अरे हमको चाहिए यहाँ तक तो ले आए 2a एक जगह रूट 2x. यहाँ पर हमको है क्या 7x, तो 7 गायब हो जाएगा, तो 7 लाना पड़ेगा, 7 से इंटू कर देते हैं. बट यहाँ एक्स्ट्रा क्या है 2 रूट 2,
तो इसको हटाना ना जी, हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, तो कैंसिल कर दोगे, अरे 2 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल, देन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2ab। अगर आप कैंसिल कर दोगे दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2ab, तो ध्यान रहे कैंसिल नहीं करना। 2 एक जगह रूट 2x है ना, चलाना था 7 तो 7 रखना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा था तो डिवाइड कर देंगे, बस यही तो इसमें समझना है। इक्वल -3, लिसन केयरफुली, in the formula of a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square, but here b square is not available. Okay, b square add on both sides, add a हो गया 2x और this is b 2 एक जगह है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एक जगह क्या √2x और b की जगह कितना जगह 2, a की जगह √2x और ये जो बच जाएगा b बच जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है -2a, इसी ये √2x और रिमेनिंग इज b हो जाएगा 7/2 √2। ओके, 7/2 a स्क्वायर -2 प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा ना, ऐड 7/2 √2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, है ना। ओके, a स्क्वायर -2b एक जगह तो हो गया √2x, एक जगह √2x है ना, एक बच गया जो कि हमको फॉर्मूला चाहिए a स्क्वायर -2b प्लस b स्क्वायर, इतना टाइम करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है √2 स्क्वायर -2 ओके, ऐड करना पड़ेगा क्या 7/2 √2 होल स्क्वायर, बोथ साइड ना, बोथ साइड। मैथमेटिक्स ऑल एंड ऑल इक्वल, मैथ में जब भी सॉल्व करना है दोनों तरफ सबको बराबर का अधिकार, मैथ में सबको बराबर का अधिकार, ठीक है। तो √2x स्क्वायर -2 एक जगह √2x, अभी ये क्या हो गया b, तो a स्क्वायर -2b प्लस b स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर ऐड कर दिया इधर 7/2 √2 होल स्क्वायर इधर भी होगा, दोनों तरफ ऐड किए नो, ऐड बोथ साइड्स देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स सेज ऑल एंड ऑल आर इक्वल, मैथ सबको बराबर का अधिकार देता है ना। तो 7/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इधर भी, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, इसके अब ये ऐड कर देंगे भाई 7/2 होल स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आएगी तो माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फर्क पड़ेगा। ऐड बोथ साइड देन नो प्रॉब्लम। ओके, लिसन केयरफुली, 10 is equal to x plus 4, add both sides 5, add both sides 5, here 15, here x plus 10, तो 5 इधर भी बढ़ गया 5 इधर भी, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए अगर चाहिएगा तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 10, इसको इधर ले आइए प्लस 5 है, 5 को इधर लाइएगा तो माइनस 0, तो फर्क पड़ा। So both sides add 5, in this side plus 5, in this side minus 5, in this side plus 5, in this side minus 5, 5 minus 5 0, so both sides add then remain same to same रहेगा, same to plus 5 है, ठीक है, क्लियर, same to same कोई फर्क नहीं पड़ा। add both sides then no problem, ये तो जानते भी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो कर देता हूँ, तो फॉर्मूला a स्क्वायर -2b प्लस b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b की जगह 7/2 √2 का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह √2x माइनस b की जगह 7/2 √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी -3 प्लस 7 स्क्वायर ना 49 बाई 2 स्क्वायर 4 और √2 स्क्वायर 8, तो 4 into 2। ओके, this square that means only for 2 more than both 2 square 4 √2 square 2। okay, √2x the square कर दिया ना, completing the square that means first of all you can do a square and after again solve, so here square, here
स्क्वायर रूट 2x minus 7 by 2 स्क्वायर इन दिस साइड रूट, चलो स्क्वायर हो जाता है बहुत बेटा हुआ, तो -3 प्लस 49/8 तो रूट 2x minus 7 by 2 root 2 whole square, LCM taken nothing than 1, 8 minus 24 plus 49 so root 2x minus 7 by 2 root 2 whole square, this is 25/8. Okay, now a square remove, root 2x minus 7 by 2 root 2 a square remove, then in this side root, in this side root, so root 2x minus 7 by 2 root 2 break कर देते हैं इसको, 5 into 5 this is 2 into 2 into 2. Okay, root 2x minus 7/2 root 2 is equal to, दो में से एक निकलेगा, एगो 5 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, एगो 2 जैसा डाइस, एगो 5 निकल गया, एगो 2 निकल गया, एगो 2 जैसा वैसा। देखिए रूट से निकलता है तो देयर आर 2 वैल्यू, लिसन केयरफुली, root 9 राइट 3 into 3 that is second 3, root 9 also write -3 into -3 that is second -3. The root 9 that means there are 2 value, one in plus and one in minus, plus 3 and minus 3. तो रूट से निकलता है तो दो वो, एगो प्लस में और एक तो माइनस में, तो प्लस माइनस, ओके, रूट 2x इक्वल this side minus, then in this side plus, in this side minus 7x 7 by 2 root 2, then this side plus, so plus right, no problem, plus कितना लिखते हैं प्लस माइनस दोनों आ जाएगा इधर, ठीक है। तो नाउ LCM 2 root 2 प्लस 7 प्लस माइनस 5 हो जाएगी, रूट 2x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/2 रूट 2। ऐसा करते हैं, रूट 2 को इधर लाते हैं, रूट 2 पहले से यहाँ पे, लिसन केयरफुली, इन दिस साइड रूट 2 into in this side divide, in this side root 2 here sign nothing then into, then in this side divide, यानी नीचे आ जाएगा 2 रूट 2 यहाँ पे पहले से, देखिए लिसन लिसन लिसन, रूट 2x in this side minus then in this side plus, इधर है तो इसका प्लस, इधर देख रहे हैं आपका रूट 2 क्या है इनटू में, in this side root 2 into then in this side divide, ये 2 root 2 पहले से डिवाइड यानी नीचे चल जाएगा, साइन नथिंग देन इनटू x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/2 है ना, इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5। ओके, प्रॉब्लम x इक्वल 7 प्लस माइनस 5 रूट 2 का टू का 4, एक बार निकलेगा x इक्वल टू 7 प्लस 5/4। ओके, अंडरस्टैंड, x is equal to 7 प्लस माइनस 5 और 4, एक बार निकलेगा x is equal to 7 प्लस के साथ, एक बार निकलेगा आपको माइनस के साथ, है ना, x इक्वल 7 प्लस 5/4, एक बार 7 माइनस 5 अपॉन 12/4 कौन जगह 2/4 यानी नथिंग बन गया, x का 2 वैल्यू निकल गया यहाँ पे, x इक्वल टू यहाँ पर 3 हुआ है, देखो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x इक्वल 3 and 1/2, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2, दोनों वैल्यू निकल गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? Here also right answer direct 3 or 1/2. So question number 1 is completed. Now I will come to the point. Question number 2. Yeah, one more talking also. Roots in the question
कंडीशन अप्लाई इफ दे एग्जिस्ट, यानी रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट इन द केस ऑफ डी इक्वल 0 एंड डी ग्रेटर 0. ओके, तो डी ऑल्सो कैलकुलेटेड इन दिस साइड. बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी माइनस 7 और a की जगह 2 और c की जगह 3 रख दिया. तो d इज इक्वल टू 25, दैट इज पॉजिटिव, दैट मींस रूट्स एग्जिस्ट. एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है. रूट्स आया एग्जिस्ट हुआ तब 3 आया एंड 1/2. ओके, कंडीशन लगा दिया इसमें कि इफ दे एग्जिस्ट, यानी रूट्स जब एग्जिस्ट हो तभी आप निकालो. रूट्स जब क्या हो, एग्जिस्ट हो तब निकालो. तो एग्जिस्ट इन द केस ऑफ डी इक्वल 0, अदरवाइज डी ग्रेटर देन 0, है ना. तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट किया तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो करते करते डी आया कितना 25, यानी पॉजिटिव आया. ठीक क्या आ गया, पॉजिटिव आया. तो पॉजिटिव दैट मींस रूट्स एग्जिस्ट. अगर पॉजिटिव आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट. देखिए आपको रूट्स एग्जिस्ट हुआ तब ना डी आया और 1/, है ना. तो कंडीशन आपको क्वेश्चन में लगाया हुआ था कि रूट्स एग्जिस्ट. रूट्स एग्जिस्ट क्या होगा, या तो डी 0 होता है या डी पॉजिटिव होता है ना, ग्रेटर देन 0. तो देखिए यहाँ पर डी निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और बी की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस c हो गया माइनस. तो डी आया 33, यानी पॉजिटिव. डी आपका 33 आ गया, यानी पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो रूट्स एग्जिस्ट, है ना. पॉजिटिव है दैट इज रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स संभव है. अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना. दिस इज, मैंने बताया था सभी को पहले. ओके, अब देखिए दिस इज a square, that is a square otherwise b square, this is 1 power that is 2. a square वाला या तो a square otherwise b square, और 1 power that is 2ab. ये देखिए स्क्वायर वाला, तो ये a square बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ab. इट लाइक राइट आल्सो, नो प्रॉब्लम. 2 राइट रूट 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस 4. सेपरेट स्क्वायर कंबाइन प्लस x इक्वल टू रूट 2x. ओके, रूट 2x स्क्वायर. एक जगह क्या हो गया, रूट 2x. ओके, एक जगह हो गया आपका रूट 2x माइनस 2. एक जगह कितना है, रूट 2x. ओके लिसन, एक की जगह होगी आपका रूट 2x. एक जगह कितना, ये तो बन जाएगा 2ab. दिस इज 2ab. फॉर्मूला क्या होता है, 2ab है a स्क्वायर माइनस प्लस है, प्लस है, सॉरी प्लस है, प्लस 2 एक जगह रूट 2x. अब देखिए यहाँ पर है क्या, नथिंग देन 1, नथिंग देन 1 इनटू में 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है यार, नथिंग देन 1. और केवल हमारे पास यहाँ पे x है, तो एक्स्ट्रा क्या है 2 रूट 2, तो इसको डिवाइड कर दीजिए. बस यही समझना है यहाँ पे. ये समझ गए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर हो गया. a स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, ये 1 पावर वाला 2ab, 2a की जगह रूट 2x, है ना. a की जगह रूट 2x, इंटू में 1 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, तो इंटू में 1 है ना. तो यहाँ पर हमको पास केवल x एक्स्ट्रा हो गया 2 रूट 2, तो हटाने के लिए डिवाइड कर दिया. काट नहीं दीजिएगा, काट दीजिएगा तो ये गायब हो जाएगा, तो फार्मूला 2ab बनेगा. अगर काट दीजिएगा 2 रूट 2 कैंसिल, तो फार्मूला नहीं तैयार होगा, इसलिए काटना नहीं है. इज इक्वल टू 4. अब बताइए फॉर्मूला में हमको कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज b. इन द फॉर्मूला आई वांट टू a स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस 2 की जगह रूट 2 एंड दिस इज b. ओके, तो क्या करते हैं ना, b स्क्वायर ना ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब ना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऐड कर देते हैं, यानी 1/2 रूट 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ओके, रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2x प्लस 1/रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 होल स्क्वायर इन दिस साइड एंड आल्सो इन दिस साइड. ओके, तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a
प्लस प्लस पे जाएगा प्लस बी पे जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए आ गया ना स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर दोनों का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 है, यहाँ साइन नथिंग देन इनटू है ना, स्क्वायर आ गया ना। स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर एंड ये सॉल्व, तो स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करते हैं। तो √2x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 8 यानी √2x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू नीचे कुछ इनको मान लिख हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, ये दोनों को इंटू कीजिए तो 32 प्लस 1 33 अपॉन 8, स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे इधर चाहेगा रूट, √2x प्लस 1 अपॉन 2√2 है ना। देखिए लंबा नहीं है, लंबा मैंने कर दिया, दिस इज नॉट लॉन्ग क्वेश्चन है ना। फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी ट्राई टू सॉल्व इन डिटेल एंड डिटेल, ओके देन लॉन्ग √33 अपॉन 8, ओके √2x प्लस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 33 का तो ब्रेक करिएगा तो 3 into 11 ना ही 3 निकलेगा और ना ही 11 निकलेगा, 33 5 twice तो 3 into 11 ना ही 3 निकलेगा और ना ही 11, तो इसको रहने देता हूँ, इसको ब्रेक करेंगे 2 into 2 into 2, ओके तो √2x प्लस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 33 रूटे में रह जाएगा और एक तो 2 बाहर निकल जाएगा, देखिएगा एक तो 2 आपको बाहर निकल जाएगा, 33 एगो 2 तो पहले बाहर निकल गया, 33 2 एगो अंदर में रह जाएगा, एगो 2 आपका बाहर में रह जाएगा, ठीक है, एक 2 आपको बाहर में रह जाएगा। क्लियर है? डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो क्या पता कि इसका फैक्टराइज है, तो फैक्टराइज में तो कितना है, फैक्टराइज किए तो आपका कितना 30 इसलिए देखना है, तो 33 का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 33 का कहेगा फिर 3 निकला नहीं, इसको आपका 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, या ऐसे करके ऐसे लिखते हैं √33 अपॉन एगो 2 बाहर आ जाएगा, एगो 2 से दिक्कत 33 रूटे में आ जाएगा, एगो 2 बाहर आ गया, एगो 2 डाउट है तो कमेंट अभी भी कमेंट कीजिएगा जरूर आप, ये नहीं निकलेगा इसका फैक्टराइज होगा नहीं, गैस का लेकर दिया 2 में एगो निकल गया, एगो 2 बैठ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं इसको उधर जिसका वैल्यू निकालना है इधर बच्चों को तरफ, तो यह प्लस है इधर आएगा माइनस, ठीक है। अब बताइए मैंने बताया था रूट से निकलता है 2 वैल्यू, 1 प्लस एंड 1 माइनस, रूट से जब भी निकलता है तो 2 वैल्यू निकलता है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो प्लस 1 मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे कि √9 है तो 3 को नहीं बताया कितना होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, प्लस का रूट सॉल्व कर दिया ना, प्लस में निकला है वो माइनस में 2 निकलेगा, प्लस में और एक माइनस में, √33 अपॉन 2√2 √2x इक्वल एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 2√2 माइनस 1 प्लस माइनस √13, इसी तरह इसको भी वही करते हैं, इधर √2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 2√2, दिस साइड टू √2 इंटू में, इधर आपका √2 इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, साइन नथिंग देंगे, इधर आपका √2 इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 2 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, √2 इंटू √2 आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 है ना, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, चलो एक लाइन मैं देता हूँ, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या -1 प्लस माइनस √33, ठीक है।
-1 प्लस माइनस √33 अपॉन 8। तो क्या को वैल्यू निकल गया x का मेरे पास, तो वैल्यू निकलेगा निकलेगा -1 प्लस √33 वैल्यू ऑफ x -1 प्लस √33 x इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 8 आंसर। दूसरा -1 माइनस √33 अपॉन, है ना, क्या आंसर आ गया इसका, 2 आंसर आ गया। कई बार बार मिटाते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं ठीक है। फिर देखिए जी है ना, तो 2 आंसर हो गया x का। तो -1 प्लस √33 अपॉन 2 और एक -1 माइनस √33 अपॉन 4। ठीक है, 2 टू द, ये तो सेकंड हो गया। अब थर्ड फोर्थ देख लेते हैं अभी। तो अभी हमने बताया रूट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट डिपेंडेड ऑन डी। तो यहाँ पर देखिए डी निकाले तो 0 आया, b² माइनस 4ac, a 4, b कोफिशिएंट ऑफ x 4√3, c कोफिशिएंट ऑफ y यानी कांस्टेंट है, तो b² माइनस 4ac है, तो d 0 है, रूट एग्जिस्ट। चलिए एक्सप्लेन हो जाता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। d इक्वल टू 0, रूट्स एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, सॉल्व करिए। d अगर आपको x का वैल्यू कुछ रियल नंबर मिलता है तो एग्जिस्ट, x का वैल्यू रियल नंबर नहीं मिलता है तो नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो जब सॉल्व करके देखिए आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा एग्जिस्ट है या नहीं, है ना। सॉल्व करके देख लीजिए, अगर एग्जिस्ट हुआ तो वैल्यू निकलेगा, नहीं हुआ तो नहीं निकलेगा। चलिए देखिए तो इसको मैं लिख देता हूँ 2² x², मैंने बताया 2 पावर, दिस इज a² अदरवाइज b² एंड 1 पावर दैट इज 2ab। 2 पावर वाला या तो a² होगा या b², इसके हाफ पावर है तो ये हो जाएगा 2ab। अगर यहाँ पे रहता 4 पावर तो यहाँ पे 2 पावर आता, तो हाफ पावर वाला ये होता 2ab वाला होता। यहाँ पे रहता 10 पावर तो यहाँ पे 5 पावर आता है, तो ये हो जाता हाफ पावर है तो 2ab वाला। बट यहाँ पे है क्या 2, है ना, तो 2 पावर, इसका देखिए पावर नथिंग देन 1 यानी हाफ है ना, 2 पावर है पावर नथिंग देन 1 यानी हाफ है, तो दैट इज 2ab। ओके, तो 4 राइट, a² ओनली x² बोथ ना स्क्वायर कंप्लीटली स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको 4 को लिख दिया 2² प्लस 4√3 x, इसको उधर भेज देता हूँ। द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड टेकन वन साइड एंड रिमेनिंग साइड इन अदर साइड, 3 को उधर भेज दिया। अलग अलग स्क्वायर है, एक के पहले स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, प्लस 4√3x इक्वल टू -3। अब a हो गया, एक पावर 2ab हो जाएगा, a की जगह 2x प्लस 2, a की जगह 2x, है ना, a की जगह 2x। आप बताइए हमको, जरा ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पर 4√3 लाना है, क्या लाना है 4√3 लाना है। तो देखिए 4√3 ऐसा करिए ना, यहाँ पे रख दीजिए, ये एक्स्ट्रा ना हो गया, तब 2 × 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपली। तो यहाँ पर कट जाएगा भी 4। लिसन केयरफुली, a की जगह हो गया 2x, a की जगह 2x प्लस 2a, a की जगह 2x, है ना, a की जगह हो गया 2x तो प्लस क्या होता है 2a, a की जगह 2x, है ना, तो 2 × a की जगह रख दिए। हमारे पास यहाँ है क्या 4√3, मेरे पास यहाँ पे है 4√3, कहीं एक्स्ट्रा हो गया जी। हम इसी को ना ब्रेक करके 2 × 2 लिख रहे हैं, जो भी लिख रहा है ना, 4√3 ब्रेक्स एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2 लिख रहा है ना। तो यहाँ पर एक क्या देखें कि 2 a की जगह रख दिए 2x, एक्स्ट्रा हो गया, ये बचा तो रख दिए, सॉरी ये बचा हुआ है, ये दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कौन हो गया 2 × 2 ना, ये तो गिवन ही है 4√3, एक्स्ट्रा क्या हो गया 2 × 2, क्योंकि 4√3 पहले से था, रख दिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा हो गया 2 × 2, इसको काट दीजिए। इसको और छोटा अगर करना है आपको तो 2 से कटेगा 2 टर्म, 2 से 2 कैंसर इक्वल टू -3। तो बताइए 2x, हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 नहीं काटना, क्योंकि अगर ये काट दीजिएगा तो 2a भी गायब हो जाएगा। दिस 2 नेवर कैंसल, दिस 2 नेवर कैंसल। अगर कैंसल कर दोगे तो देखिए तो
2ab गायब हो गया, इसलिए ऐसा कभी भूल नहीं करना आपको, है ना। ये वाला 2 से ये 4 काटे 2 से, हम फिर 2 से 2 कैंसिल, ये सब छोटी छोटी बात पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको काट दीजिएगा तो फिर 2ab कैंसिल हो जाएगा जी। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x बचा आई टू रूट 3 आई इक्वल टू -3। तो देखिए a की जगह 2x है ना, यहाँ पे लेता हूँ, a की जगह 2x हो गया, अब b की जगह क्या हो जाएगा, 2 a की जगह 2x और b की जगह रूट 3, है ना। 2 a की जगह 2x और b की जगह रूट 3, तो फार्मूला बन गया a प्लस b a की जगह 2x और प्लस b की जगह रूट 3 का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया a की जगह 2x और प्लस b की जगह रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। मैं क्वेश्चन ही कर, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने 2a b स्क्वायर ऐड कहाँ किया, अभी ऐड करना पड़ेगा था ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब b स्क्वायर कहाँ, b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना जी, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह इतना, b स्क्वायर कहाँ ऐड करना पड़ेगा, ऐड b की जगह रूट 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सब बात छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग तो इतना जानबूझ के डिटेल लंबा कर गए, आप लोग जब मैं बनाऊँ ना अलग तो इतना से इतना में मैं बना दूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे आप लोग को समझाना पड़ता है, इसलिए मैं डिटेल में ले जाता हूँ। तो ऐड कर दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू रूट 3, तो दोनों तरफ ना ऐड किए हैं, प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल -3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। a की जगह 2x और प्लस b की जगह रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2x और प्लस रूट 3 का स्क्वायर खत्म, 0 आया, क्या आया, 0। ओके, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा 2x प्लस रूट 3 अंडर रूट 0, तो रूट 0 से प्लस 0 निकलेगा और एक -0 निकलेगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस -0 एक प्लस रूट 3 इधर आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं, बोथ रूट्स आर सेम। मैंने बताया था d इक्वल टू 0, तो हियर बोथ रूट्स विल बी सेम, दोनों रूट्स आपका सेम हो गया, आप निकाल के देख लो, d 0 तो बोथ रूट्स आर सेम, इसलिए तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रूल यही कहता है कि रूट से निकलता है प्लस माइनस, तो प्लस 0 निकल भी -0, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस -0 माइनस रूट 3, अगर 2 इंटू में इधर आया तो डिवाइड लेके चलना, 0 टेकन नॉट टेकन नो प्रॉब्लम, 0 इज टेकन अदर नॉट टेकन नो प्रॉब्लम, बट अकॉर्डिंग टू रूल रूट से निकलता है 2 प्लस और माइनस, तो लेके चलना, तो वो x आएगा क्या, प्लस 0 माइनस रूट 3/2, एक बार माइनस के साथ निकलेगा -0 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा माइनस रूट 3/2, ये भी माइनस रूट 3/2, है ना। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स कह रहा था, रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं रूट्स यानी वैल्यू ऑफ x, है ना। तो यहाँ पर आंसर डाल दीजिए इक्वल टू माइनस रूट 3/2, या यहीं पर आंसर डालिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बचा हुआ छोड़, वो भी देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए d जो है निगेटिव आ गया है, निकालिए a की जगह 2, b की जगह कोफिशिएंट ऑफ x1 और c कोफिशिएंट ऑफ 1 या कांस्टेंट टर्म 4, तो d निकाले b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह 1 हो गया, -4 a की जगह 2 और c की जगह 4, यानी बार अब 4 टू जाइए 2 4 32, तो -31 d निगेटिव, यानी रूट्स आपका एग्जिस्ट नहीं होगा, d निगेटिव आया, दैट इज रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप कहेंगे हो सकता है सर आप सही शायद नहीं बता रहे हैं, ये आपके लिए एग्जिस्ट कैसे नहीं है रूट्स, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ कि वाई रूट्स नॉट एग्जिस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x + 4 = 0। चलिए वही मेथड अप्लाई कीजिए, इसको उधर भेज देते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं √2x का होल स्क्वायर, है ना, √2x का होल स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट, प्लस तो ये a स्क्वायर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab वाला इक्वल -4,
ठीक है, तो √2x स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 2ab वाला, ये हो जाएगा a स्क्वायर वाला होता है, या तो a स्क्वायर या तो b स्क्वायर वाला, और एक पावर वाला, तो यहाँ पर कुछ नहीं इंटू में तो 1 है, तो प्लस है ना 2 a की जगह √2x है ना, इंटू कुछ नहीं तो इंटू में और 1 हो गया, तो x को यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक्स्ट्रा क्या है 2√2, तो 2√2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2√2 काटना नहीं है, चलिएगा 2 a की जगह था √2x लिख दिया है ना, x को यहाँ पर आ ही गया है, तो कुछ बचा नहीं आपको, तो इंटू में कुछ नहीं तो 1, तो एक्स्ट्रा हो गया क्या, केवल हम यहाँ पे x है, केवल यहाँ पे क्या है x है, तो x है ही यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा हो गया 2 और √2, तो 2√2 से डिवाइड कर दे, 2 काट देंगे, तो काट देंगे तो 2ab के फॉर्म में ना आएगा, इसलिए काटना नहीं है, 2 × √2x 1/2√2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कहाँ है, तो ऐड करना, ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, ऐड 1/2√2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, √2x स्क्वायर प्लस 2 × √2x इंटू 1/2√2 है ना, प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इधर भी और इधर भी, ठीक है, 1/2√2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किए तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल, दोनों तरफ ऐड किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो फिर 0 हो जाएगा ना, ये 1/2√2 होल स्क्वायर इधर प्लस, इधर भी प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क, दोनों तरफ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ सबको बराबर का भी था, जब भी ऐड करो तो दोनों तरफ, नहीं तो कहीं भी नहीं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला बन गया √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, मैंने अभी पहले ये भी एक्सप्लेन किया भी, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8, तो √2x, और यहाँ पर ही समझने वाला है कि यहाँ पर से ही पता चल जाएगा आपको कि रूट्स क्यों नहीं होगा, एलसीएम नीचे कुछ नहीं तो 1 तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ये -32 और +1 है ना, तो हो जाएगा √2 x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा -31/8। अब जरा ध्यान दीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि रूट्स क्यों नहीं एग्जिस्ट। आप बताओ, तो किसी का स्क्वायर करो आपका आ जाएगा पॉजिटिव ही आता है, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, जैसे आप देखो -5 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5 तो प्लस हो जाएगा 25, -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू माइनस का यानी पॉजिटिव ही आया, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, 5 आप 15 का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव नहीं आया, यानी किसी का भी स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करो या फिर प्लस का स्क्वायर करो, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो देखिए तो ये सब किसी का स्क्वायर, तो ये पक्का है कि पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा नहीं होगा, दैट इज रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समथिंग का स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर करो, ओके, समथिंग टू द स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर करो, आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। और ये क्या है, इधर निगेटिव, तो इधर आया पॉजिटिव और इधर आया निगेटिव, यानी पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए मैंने बोल दिया इसमें रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर सेकंड होगा
क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, पाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। इससे चेक भी हो जाएगा आपको, है ना, इससे आपका चेक भी हो जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाया है वो सही बनाए कि गलत। 3 मेथड होता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर वाला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो 3 मेथड से, तो एक मेथड से मैंने सॉल्व किया सबको। अब सेकंड में कहता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए गिवन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या पढ़े, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो डी आपको तो निकालना पड़ेगा ना, पहले निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू 3 यानी 49 माइनस 4 की जगह 3 या 24 यानी 25, है ना। डी आ गया 25। तो लगाइए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह माइनस ही पहले से है, बी की जगह -7 प्लस माइनस, है ना, डी कितना है 25 अपॉन 2a। ए की जगह आपको कहाँ, ए की जगह 2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, 7 प्लस 5 अपॉन 4, एगो 7 प्लस 5 बाई 4 आएगा बाहर, एगो 7 माइनस 5 बाई 4 आएगा, यानी 12 अपॉन 4 और 2 अपॉन 4। तो 3 टाइम्स कटेगा और ये 2 टाइम्स कटेगा, और कुछ नहीं तो मन 3 ये हो गया 1 अपॉन 4। क्लियर। उसी तरह सेकंड देख लेते हैं, इसमें पहले ए बी सी लिख देते हैं, a2 b1 c -4 हो जाएगा, ठीक है। तो डी निकाल लीजिए पहले, आसान हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में डी आता है, तो डी पहले ही निकाल लेते हैं, छोटा हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी की जगह -4, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 32 यानी 33। तो निकाल लीजिए x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस जी की जगह -1 प्लस माइनस डी की जगह रूट 33 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 2 यानी -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 हो जाएगा। एगो -1 प्लस -1 माइनस, एगो प्लस के साथ निकलेगा, -1 प्लस के साथ निकलेगा, तो -1 माइनस के साथ निकलेगा, रूट 33 अपॉन 4। यही हो गया मेरा आंसर। थर्ड नंबर देख लीजिए, कितना आसान है ये। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में थोड़ा समझाना था ना, इसीलिए मैं एक वो समझ गया, मैं एक वो आप समझ लिए ना, तो सेकंड थर्ड फुल जो बताएं और बताएं वो बहुत ही आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर को लॉन्ग ज़्यादा किया तो वीडियो बड़ा लग रही होगी ना, कुछ तो वीडियो बड़ा लगे ना, तो ऐसा कीजिए ना कि आप थोड़ा सा वीडियो को 2 बार में देखिए, है ना। देखिए नहीं कहें कि बड़ा वीडियो है, तो बड़ा वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बनाता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए इसमें भी a = 4, b = 4 रूट 3 और c = 3। तो d निकाल लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4 रूट 3 b की जगह स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 और c की जगह 3, तो दोनों का स्क्वायर तो 16 है 3 और माइनस 48 यानी 48 माइनस 48 यानी d आ गया आपको जी। तो पक्का है कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। जब d 0 होगा तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर d पॉजिटिव आया तो बोथ रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, अनइक्वल है। इसमें भी d आया क्या 33 पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर रियल है लेकिन अनइक्वल। तो देखिए दोनों इक्वल है, प्लस रूट 33 है तो वो माइनस, लेकिन यही यहाँ पे अंदर में माइनस आ जाता तो ये अनरियल हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। अंदर में माइनस रूट 33 आता तो लगाइए फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह डी कितना गया 0 आया अपॉन 2 इंटू ए की जगह 4, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन हो जाएगा। चलिए अगले अलग कर देते हैं, देखो होगा माइनस, अच्छा प्लस रूट 0 का 0 होगा और बाई 8, ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8 हो जाएगा माइनस 4 रूट 3
माइनस 0, वो प्लस 0 के साथ आएगा, वो माइनस 0 के साथ आएगा। अब बाई 8, ठीक है, इक्वल टू इधर लिख देता हूँ आंसर अभी, डिवाइड करेगा तो कहाँ कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 होगा, ऐसे ही -4√3 अपॉन 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 कट जाएगा 2 टाइम्स, हो जाएगा -√3 अपॉन 2, -√3 अपॉन 2, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। अब आपको मिला लीजिए, आप क्वेश्चन जो 1 में बनाए थे, देखिए वही आंसर आया था, 3/1/2 आया था, मिला लीजिएगा, है ना, 3 और 1/2 ही आया था, ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किए थे, तो इसमें भी वही आंसर आया था, इसमें भी देखिए तो चेक हो रहा है अभी आपका आंसर सही है कि गलत, इसमें भी निकाल लीजिए, a = 2, b = 1 और c = तो ये सब तो समझ गए, a कोएफिशिएंट ऑफ x², 2, b कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x ऑफ कुछ नहीं तो 1 है, c कोएफिशिएंट ऑफ 1 यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए पहले d, तो d के जगह 1 अल्फा -4 है, a के जगह 2 है, c के जगह 4 यानी 1, अब माइनस हो जाएगा 4 to 32 यानी 4 to 32 तो -31 यानी d हो गया -30, निगेटिव होगा ये रूट्स उसका एग्जिस्ट नहीं होगा, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगर आएगा भी यानी डू नॉट एग्जिस्ट करने का मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट मीन्स इमेजिनरी नंबर। निकाल लीजिए माइनस b प्लस √d अपॉन 2 है, माइनस b हो गया 1 प्लस माइनस d हो गया √-31 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2, तो -1 प्लस माइनस √-31 अपॉन 4, एक आएगा -1 प्लस √31 अपॉन 4, एक प्लस के साथ आएगा, -1 एक माइनस के साथ आएगा, √-31 अपॉन 4, ठीक है, एक आएगा -1 प्लस √-31 माइनस, देखिए अंदर में माइनस है इमेजिनरी, -1 माइनस अंदर में माइनस आया यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन 1 और 2। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।